The 10th one. 10th one. Goods worth 1,000 are burnt by fire. Goods worth 1,000 are burnt by fire. Okay. Now, what are the two accounts at this point of time? Goods. Lost by fire account. Very good. One is goods and one is lost by fire. हुआ क्या transaction? Imagine goods gaya, jal gaya, so gone, basam. But did you get anything against it, cash or anything? अगर cash wash मिलता तो it would have been sales income for you, right? तो गया gone and you got nothing in return. That means it is loss. That means it is loss. कुछ आया ही नहीं return. That means it is loss. So write down all of you. One account is loss. That loss is called as loss by fire account. One account is loss by fire account. Okay. And the other account, someone said goods. You are absolutely right. Abhi goods ke teen account hai. What are the three accounts used for goods? You remember? Sales, purchase. Stocks. Sale, purchase and stock. अब sales तो use नहीं हो सकता है definitely because Stock. stock हो सकता है. Okay. या फिर purchase भी हो सकता है. तो better account कौन सा use करना है? आपको purchase account use करना है. Okay. Purchase. I'll tell you the reason why. Abhi some colleges they want you to use purchase like NM and Mitibai, and some colleges they want you to use goods account, okay, stock account. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दूसरा account, goods के जगह लिखना है goods lost by fire account, goods lost by fire account, या फिर purchase account, goods lost by fire account या फिर purchase account, okay. दोनों यूज कर सकते हैं आप, गुड्स लॉस बाय फायर भी यूज कर सकते हैं और परचेज भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. पहले मैं आपको गुड्स लॉस बाय फायर के हिसाब से लॉजिक बता देता हूं, फिर आपको परचेज का भी लॉजिक बता दूंगा. ठीक है. पहले गुड्स लॉस बाय फायर का लॉजिक समझते हैं, उसके बाद परचेज का बताता हूं. दोनों तरीके से देखो, अल्टीमेटली क्या होता है बुक कीपिंग में, अल्टीमेटली आपको खाली पता होना चाहिए कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है. आप कौन से रूट से वहां पहुंचे हैं कोई मैटर नहीं करता है. आप मॉडर्न अप्रोच से जा रहे हैं, आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जा रहे हैं, आप उसको नॉमिनल ट्रीट करके जा रहे हैं, उसको रियल ट्रीट करके जा रहे हैं, डजंट मैटर. अल्टीमेटली डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी परफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी परफेक्ट. लेकिन आप लॉजिक समझ के करोगे तो आपको ये इजी पड़े, आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए इजी रहेगा आपके लिए. सो लॉस बाय फायर एंड गुड्स लॉस बाय फायर. ठीक है. लॉस बाय फायर मुझे बताओ कौन सा टाइप रहेगा? ट्रेडिशनल, नॉमिनल. और पहले गुड्स देखते हैं, बाद में परचेज पे जाते हैं. गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स अकाउंट क्या होता है आपका? गुड्स स्टॉक, एसेट, रियल. अनसोल्ड, ओके, अनसोल्ड गुड स्टॉक दैट इज रियल, वो जल गया तो रियल अकाउंट में जाता है. बराबर है. अब रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट क्या होगा? रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट, Debit all expenses. लॉस हो गया ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. व्हाट अबाउट गुड स्टॉक, रियल? Credit what goes out. Credit what goes out. Either it should be debit what comes in या credit what goes out. All of you are clear with that rule? Goods आ रहा है कि जा रहा है बिजनेस में से? जा रहा है, going out. बराबर. Goods are going out, gone. So debit all expenses and losses and credit what goes out. Now rule क्या होगा इसमें? Reason क्या होगा? Loss by fire is expense. Yeah, loss by fire is expense. Yeah, loss, you can write loss. And what about goods? Goods are going out. Going out matlab gone, basam, destroyed. So finally which account shall be debited? Loss by fire. Loss by fire account is debited. ये loss हो गया. And goods lost by fire account is credited. Goods gone out of the business. Is this logic clear?
पड़ा हुआ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया आपका, बराबर है। पहला वाला समझ में आया, लॉस हुआ और गुड्स गया, गुड्स गॉन, रियल अकाउंट गॉन, स्टॉक, so credit what goes out and loss debit all expenses and loss. Is this clear? अब परचेज कैसे यूज होता है यहाँ पे, हाउ कम परचेज यूज हो गया यहाँ, तो देखो समझो आपने बिजनेस में 10 आईफोन खरीदे, 10 आईफोन परचेज किए, एक आईफोन का वैल्यू है 1 लाख, तो टोटल कितना हुआ 10 lakhs, बराबर है। 10 आईफोन में से आपने 9 आईफोन बेच दिए, 10 आईफोन में से आपने 9 आईफोन्स बेच दिए, सेल कर दिए एट से 1,05,000, 1,05,000 में आपने सेल 1,10,000 ले लो, इजियर कैलकुलेशन, 1,10,000 में आपने सेल कर दिया, 1,10,000 में आपने सेल कर दिया, तो आपका सेल्स कितना होगा, नाइन आईफोन को 1,10,000, 9 लाख एंड 90,000, बराबर है। अभी 10 आईफोन में से आपने 9 बेच दिया और एक आईफोन जो है वो जल गया, शॉर्ट सर्किट हो गया चार्जिंग करते वक्त और जल गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉयड। वुड यू बी एबल टू सेल दैट आईफोन? No. So should that iPhone be a part of my purchase expense? Yes, sir. Is it? Purchase means which purchase? But it won't be included in sales income. हाँ, सेल्स इनकम में तो इंक्लूडेड नहीं है, तो कैन आई कॉल इट एज परचेज? परचेज मतलब विच परचेज डू आई टेक, विच आइटम्स डू आई टेक इन परचेज? दोज जो विच sell आर हो गया। सोल्ड, तो बेचा है तो ही मैचिंग फॉलो हो रही है वहां पे, बराबर है। तो परचेज और सेल की मैचिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर आपने 9 आईफोन्स बेचा है तो 9 आईफोन्स का ही परचेज कॉस्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तो 10वां आईफोन शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ परचेज, तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज में से उसको रिड्यूस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहां से मैं 1 लाख रुपीज रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे 9 लाख कर दूंगा। वो 1 लाख क्या है, वो तो डिस्ट्रॉयड है, वो तो गॉन है, ओके, वापस मिलने वाला नहीं है पैसा, उसको मैं बताऊंगा एज अ सेपरेट एक्सपेंस। एक्सपेंस ही है, माइंड यू, परचेज भी एक्सपेंस है और लॉस बाय फायर भी एक्सपेंस है, लेकिन परचेज अलग एक्सपेंस दिखाऊंगा और लॉस बाय फायर अलग एक्सपेंस दिखाऊंगा। 1 लाख, सर ये क्या सेंस बना, परचेज भी एक्सपेंस था, लॉस बाय फायर भी एक्सपेंस था, तो परचेज के अंदर ही दिखा देते, 10 लाख का तो था ही परचेज, why reduce from purchase and why show it as a separate expense? ये तो थोड़ा आगे जाएंगे हम टॉपिक्स में तो वापस आएगा, आगे का साइड का कंसेप्ट है, अभी खाली ब्रीफ में बता रहा हूं मैं आपको कि ये कंसेप्ट क्या है। ये मैचिंग जो मैं बोल रहा था ना, मैचिंग 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 मैचिंग, 1 ईयर का एक्सपेंस, 1 ईयर का इनकम, उसमें भी इन डेप्थ मैचिंग होती है परचेज और सेल की। परचेज और सेल की मैचिंग के अंदर भी इन डिटेल मैचिंग होनी जरूरी है। इन डिटेल मैचिंग का मतलब आप जितना गुड्स परचेज करते हो, वॉट एवर गुड्स यू परचेज एंड वॉट एवर गुड्स यू सेल, तो जो सोल्ड गुड्स है वो ही परचेज एक्सपेंस में दिखना चाहिए। अगर वो गुड्स सेल नहीं हुआ है ना, तो वो परचेज एक्सपेंस नहीं है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर परचेज एक्सपेंस। So that is a part of your other expenses. That is a part of your other expenses. तो इसीलिए मैंने परचेज में से निकाला, परचेज को रेड्यूस किया। What is my purchase expense now? Is it 10 lakh or 9 lakh? 9 लाख, क्योंकि मैंने 9 मोबाइल फोन्स का ही सेल किया है ना, तो सेल 9 मोबाइल फोन्स का है तो परचेज भी 9 मोबाइल फोन, और 1 लाख रुपया परचेज में से निकाल के अलग एक्सपेंस में दिखा, एक्सपेंस ही है, एक्सपेंस ही है, अलग एक्सपेंस में दिखाया, लॉस बाय फायर में दिखाया। अब ऐसा क्यों, ऐसा नहीं किया होता तो समझो मैं ऐसा नहीं करता,
समझो मैं परचेज के अंदर रहने देता, परचेज में 10 मोबाइल फोन्स का परचेज दिखा देता 10 लाख और सेल दिखाता 9,90,000, तो क्या होता? आई वुड हैव गॉट अ लॉस ऑफ 10,000। ये साल का प्रॉफिट लॉस में मुझे लॉस मिलता ना, क्योंकि लॉस के प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट और लॉस, हाउ डू यू कैलकुलेट? इनकम माइनस एक्सपेंस। So I would have got 9,90,000 minus 10 lakh. It would have been a loss of 10,000 rupees. अगर मैं ये लॉस बाय फायर को परचेज में से नहीं निकालता तो मैं बोल रहा हूं परचेज को पूरा 10 लाख दिखा दिया और सेल को 9,90,000 दिखा दिया, तो मेरे को लॉस मिलता 10,000। अब नेक्स्ट ईयर जरूरी है कि एक और मोबाइल जलेगा वापस नेक्स्ट ईयर? इज इट नेसेसरी? नो। तो नेक्स्ट ईयर वापस मैंने 10 मोबाइल फोन खरीदा, 10 लाख, और नेक्स्ट ईयर मैंने 10 का 10 मोबाइल फोन बेच दिया, तो मेरे को कितना मिलेगा? 11 लाख। तो नेक्स्ट ईयर मैं जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाऊंगा, अपना प्रॉफिट और लॉस, आंसर मिलेगा मुझे 1 लाख का प्रॉफिट आएगा, 11 लाख माइनस 10 लाख। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर कोई मोबाइल फोन जला कि नहीं जला? नहीं जला। ये जो प्रॉफिट लॉस मैंने कैलकुलेट किया है, इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। इसको कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ओके, अब लेट अस अंडरस्टैंड। मुझे क्या लगेगा, पहले साल बिजनेस ने लॉस किया 10,000 का, दूसरे साल बिजनेस ने प्रॉफिट किया 1 लाख का, तो डज इट मीन कि पहले साल मैंने बुरा बिजनेस किया था और दूसरे साल मैंने अच्छा बिजनेस किया है? इज दैट द सिचुएशन? पहले साल काम ठीक नहीं हुआ और ये साल काम ठीक हुआ है, इज दैट द सिचुएशन? नो। पहले साल क्यों मेरे को लॉस हुआ? व्हाट वाज द रीजन? लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर। तो मैं, इज दैट लॉस बाय फायर मेरा मिस्टेक? क्या मैंने काम में कोई एफर्ट्स डालने में कमी कर दी? क्या मेरे बिजनेस के एफर्ट्स कम हो गए थे? क्या मैंने बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया था? ऐसा था? नहीं, मैंने तो फुल एफर्ट्स डाले थे, बिजनेस में पूरा ध्यान दिया था, बट इट वाज एन एक्सेप्शनल आइटम। दैट लॉस बाय फायर वाज एन एक्सेप्शनल आइटम, राइट और नो? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लॉस बाय फायर को नहीं रिमूव करोगे परचेज में से, तो आपको एनालिसिस करते वक्त गलत सिग्नल मिलेगा। आपको क्या लगेगा कि यार पहले साल मैंने बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया, ये साल मैंने बिजनेस पे ध्यान दिया, नाउ आई एम डूइंग गुड। इज दैट द करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग इट? इज दैट द करेक्ट वे टू एनालाइज इट? नो। आपको रीजन पता होना चाहिए कि प्रॉफिट बढ़ा या घटा, तो क्यों बढ़ा क्यों घटा। तो आप क्या करते हो, लॉस बाय फायर को परचेज में से निकाल देते हो। लॉस बाय फायर को परचेज में से निकाल देते हो, अलग से एक्सपेंस में दिखा देते हो, सो दैट आपका लास्ट ईयर भी क्या दिखेगा यहां पे, ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है इसको, इंपॉर्टेंट प्रॉफिट। ये भी हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में लर्न करेंगे। दिस इज 9,90,000 माइनस 9 लाख, तो 90,000 का प्रॉफिट आएगा। 90,000 का प्रॉफिट है और ये साल 1 लाख का प्रॉफिट है। नाउ इट इज कंपेरेबल, राइट? लास्ट ईयर 90,000 का प्रॉफिट हुआ था, ये साल 1 लाख का था। नाउ कैन आई से आई वाज डूइंग बेटर इन आइदर ऑफ द इयर्स? सेम ही एफर्ट्स डाले थे मैंने दोनों सालों में, 90,000 का प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट। जो लॉस है ना, उसको मैं अलग से दिखा दूंगा सेपरेट एक्सपेंस के लिए, परचेज के अंदर नहीं दिखाऊं। तो हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में, कभी भी रेगुलर बिजनेस चलता है ना, उसमें परचेज में वही खर्चा दिखाते हैं जो हर साल होता है, रेगुलर परचेज होता है, जो गुड्स बेचने के लिए हुआ है वही परचेज एक्सपेंस में जाता है। अब नॉर्मल आइटम कुछ भी होता है तो निकाल देने का, रिमूव इट फ्रॉम द परचेज, परचेज में से रिमूव कर दो। रिमूव करने का रीजन क्या है कि आपको जजमेंट आ जाएगी, यू आर डूइंग द बिजनेस परफेक्टली और नॉट। बात समझ आई? आपने बैग्स का बिजनेस कर रहे हो, स्कूल बैग्स का,
आपने 100 बैग्स खरीदी, 100 बैग्स यू परचेज, 100 बैग में से 20 बैग्स पानी में खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए. You were able to sell how many bags? 80 bags, right? So if you show 100 bags as purchase and 80 bags as sale, would that be correct? तो आपको लॉस ही आने वाला है ये साल. नेक्स्ट ईयर वापस आप 100 बैग खरीदोगे, 100 बैग बेचोगे, तो आपको क्या लगेगा? पहले साल बिजनेस खराब किया था, ये साल अच्छा कर रहे हो. ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. What you need to do is, आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर कितने बैग सेल हुए थे, 80 बैग सेल हुए, तो परचेज भी कितने का लूंगा, 80 का ही लूंगा. तो ये मैचिंग रखना बहुत जरूरी है फॉर एनी बिजनेस. तो मैचिंग का मतलब क्या है? इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, जो भी अबनॉर्मल आइटम है, अबनॉर्मल, लॉस इज अ नॉर्मल आइटम और एन अबनॉर्मल आइटम. अबनॉर्मल, तो उसको आप परचेज में से रिमूव कर दो और उसको सेपरेट एक्सपेंस में बता दो. तो आप क्या कर रहे हो? एक एक्सपेंस बढ़ा रहे हो, दूसरा एक्सपेंस घटा रहे हो. लॉस बाय फायर का एक्सपेंस बढ़ा रहे हो, परचेज का एक्सपेंस घटा रहे हो. टोटल एक्सपेंस सेम ही है, खाली लॉस बाय फायर बढ़ा दिया, परचेज घटा दिया. ऐसा करने का रीजन परचेज और सेल का मैचिंग मेंटेन करना है. मैचिंग मेंटेन करने से क्या होगा? आपका एनालिसिस परफेक्ट होगा. आपको पता चलेगा कि बिजनेस अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है. इट इज गोइंग गुड और बैड ओवर द इयर्स. Then you can improve the efforts in the business. Is this clear? I'll throw you one last example. You tell me क्या करना चाहिए अपने को. Suppose जेठालाल है, उसके बिजनेस में लास्ट ईयर 5 लाख का लॉस हुआ था और ये साल 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है. जेठालाल के बिजनेस में लास्ट ईयर 5 लाख का लॉस हुआ था, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है. तो जेठालाल क्या करेगा? पूछेगा नट्टू काका बागा से, नट्टू काका बागा ये क्या है? लास्ट ईयर 5 लाख का लॉस हो गया अपने को और ये साल 2 लाख का प्रॉफिट कैसे हुआ? तो नट्टू काका और बागा बोलेंगे कि सर जी लास्ट ईयर वो बहुत बारिश गिरी थी, गोडाउन में पानी भर गया था और हमारे रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन सब बिगड़ गए, तो हमें सस्ते के भाव में बेचना पड़ा उनको मार्केट. तो हमें सस्ते के भाव में बेचना पड़ा, बराबर है, इसलिए हमारा लॉस हो गया. तो क्या वो नट्टू काका बागा को निकाल देगा बिजनेस में से? नहीं. क्यों? क्योंकि वो जो खर्चा हुआ था, वो जो लॉस हुआ था, वो कौन से रीजन से हुआ? बारिश. अब नॉर्मल आइटम. अब जेठालाल वापस पूछेगा, सपोज अनदर एग्जांपल, 5 लाख रुपए का लॉस हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ. वापस पूछा नट्टू काका बागा ये कैसा हो गया लॉस? लास्ट ईयर तो कुछ बारिश भी नहीं आई थी, कुछ आग भी नहीं लगी थी. नट्टू काका ने बोला, अरे सेठ जी एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग जब बिजनेस करने बैठते थे ना, तो बागा है ना रात को रोज लेट सोता था, 2 बजे तक टीवी देख के सोता था. तो उसका दुकान पे ध्यान ही नहीं था, वो कस्टमर को ध्यान ही नहीं देता था, ऑफिस में सो जाता था, कभी बाहर निकल जाता था, और मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मैं कितना संभालूं. तो ये रीजन से कस्टमर चले जाते थे शॉप में से, ये रीजन लॉस हो गया. अब क्या होगा? इज दिस अ जेन्युइन लॉस और एन अबनॉर्मल आइटम? It is genuine. जेन्युइन लॉस. अभी थोड़ी जेठालाल बागा और नट्टू काका को रखेगा दुकान में, वो क्या करेगा? उनको निकाल देगा. He will hire some efficient employees. He'll hire some efficient employees, right? So ये जो रीजन था दूसरा वाला, ये नॉर्मल रीजन था. आपने बिजनेस अच्छे से नहीं किया इसलिए आपका लॉस हो गया, आपने मोबाइल अच्छे से नहीं बेचे इसके लिए आपका लॉस हो गया. समझ में आ रही है बात? बट जो अबनॉर्मल आइटम है उसके वजह से ये लॉस हुआ है, तो उसको आप परचेज के अंदर मत दिखाओ, उसको परचेज के अंदर मत दिखाओ, उसको अलग से दिखाओ. ये एग्जांपल समझा आपको? ये एनालिसिस करने के लिए होता है. ओके, आगे हायर स्टैंडर्ड्स में और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं. तो अभी इसीलिए एनएम एंड मीठी भाई वो लोग क्या बोलते हैं कि आप इसको पड़े हुए गुड्स के जैसा ट्रीट मत करो, आप अपने परचेज में से उसको कम करो. सो सर बेटर क्या है, गुड्स ट्रीट करने का कि परचेज ट्रीट करने का? 11th स्टैंडर्ड में बाकी सब कॉलेजेस आपको गुड्स करने बोलेंगे, लेकिन सीए फाउंडेशन आगे जाके हायर स्टैंडर्ड्स में ये परचेज वाला कंसेप्ट ही आने वाला है. तो अभी से सीख लो तो बेटर रहेगा. ओके, तो अब देखना, व्हाट आर द 2 अकाउंट्स ओवर हियर? वन इज लॉस बाय फायर
and another account is purchase account. Now let us do the same thing with purchase. Loss by fire is nominal, we all know. What is purchase? What is purchase? Nominal. Nominal. Now, Biggest expense, right? So loss by fire is also nominal, purchase is also nominal. Okay. Rule for loss by fire, debit all expenses and losses. अब purchase को क्या rule apply होगा सोचो जरा. Credit all incomes and gains. यहाँ पे ट्रेडिशनल का फ्लॉ है, ट्रेडिशनल सिस्टम का फ्लॉ आ जाता है. इज परचेज योर इनकम? नो, बट यू आर डिक्रीजिंग इट. यहाँ पे मॉडर्न कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो. एक्सपेंस डिक्रीजेस तो क्रेडिट. तो परचेज एज एन एक्सपेंस कम हो रहा है एंड लॉस बाय फायर एज एन एक्सपेंस बढ़ रहा है. क्या लिखने के लिए लिख सकते हो? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. एंड रूल क्या लिखोगे? लॉस बाय फायर इज लॉस and purchase is income. Actually purchase is not an income, it is a reduction of expense. ऐसा कर सकते हो आप, but again it is a flaw in traditional system, can't help. Purchase is income. क्यों बोल रहा हूं मैं purchase is income? Because purchase कम हो रहा है यहाँ पे. I'm reducing the purchase part. And finally loss by fire account will be debited and purchase account will be credited. परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो मैंने क्या किया? परचेज एक्सपेंस को कम किया और लॉस बाय फायर एक्सपेंस को बढ़ा दिया. ये किया. बट ये ट्रेडिशनल में फिट नहीं होता, जेन्युइनली नहीं होता, क्योंकि परचेज इज नॉट एन इनकम. यू कैनॉट राइट परचेज इज इनकम, राइट? परचेज इज एन एक्सपेंस. ये एक्सपेंस कम हो रहा है, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस. एक्सपेंस कम हो रहा है और लॉस बाय फायर बढ़ रहा है एज एन एक्सपेंस. Is this clear? थोड़ा बहुत गया दिमाग में कंसेप्ट, मैचिंग वाला कैसे फॉलो हो रहा है यहाँ पे. तो कोर चीज याद रखो. कोर चीज क्या है? परचेज में कौन सा परचेज का एक्सपेंस दिखना चाहिए? ओनली दोज गुड्स विच यू हैव सोल्ड. उसको छोड़ के जो कचरा वचरा है, जो लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, जो घर पे लेके गए, वो सब सेल्स में नहीं होता, वो सब अलग होता है. आगे और एग्जांपल आएंगे. Then purchased machinery worth 10,000 for cash. Now this is very simple. Purchased machinery for 10,000 for cash. What are the two accounts involved? Machinery account and cash account. Machinery account and cash account. Machinery account and cash account. Traditional में बताओ, what is the rule for machinery? Sorry, type of machinery in traditional. Real asset. What about cash? Real. बराबर है. Machinery is real, cash is real. Okay. Now, मशीनरी को क्या रूल अप्लाई करोगे? मशीनरी खरीदा और पैसा दिया. इमेजिन ऑल मशीनरी खरीदा, पैसा दिया. So debit what comes in. What about cash? Credit what goes in. Credit what goes out. Cash is going out. So credit what goes out. Finally, क्या रीजन लिखोगे मशीनरी का? Machinery comes in and cash goes out. So finally, machinery account is debited and cash account is credited. Is that right? अब मुझे बताओ मॉडर्न सिस्टम में क्या करोगे इसका? What is machinery and cash in modern? Assets. मशीनरी बढ़ा कि घटा? बढ़ा. तो डेबिट. कैश बढ़ा कि घटा? तो क्रेडिट. मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट. इज दिस क्लियर? ऊपर वाला मॉडर्न में बताओ मुझे, लॉस बाय फायर वाला मॉडर्न में. व्हाट आर द टू अकाउंट्स? लॉस बाय फायर एंड परचेज, नॉट गुड्स, परचेज. तो लॉस बाय फायर एंड परचेज. मॉडर्न में क्या करोगे? लॉस बाय फायर भी क्या है? एक्सपेंस. एंड परचेज भी क्या है? Expense. How will you apply modern concept in that?
लॉस बाय फायर, Expense increases. expense increases, so debit, and purchase expense decreases, so credit. Purchase expense decreases, loss by fire expense increases, so debit and credit. Is that clear? अच्छा, ये दोनों मैंने बताए, ये ऐसा मत समझना इसका 3 इफेक्ट है, ये समझ में आया ना आपको? लॉस बाय फायर इज कॉमन, आइदर यू राइट गुड्स लॉस बाय फायर और यू यूज परचेज, तो ये और है, और ये बीच में ना और है, ये और है, तो आइदर यू डू लॉस बाय फायर एंड गुड्स लॉस बाय फायर, या फिर लॉस बाय फायर एंड परचेज, यहाँ पे बॉर्डर है इसका। ओके, तो लॉस बाय फायर एंड गुड्स लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय फायर या परचेज, ओके, दोनों मत लिख देना। टेस्ट में आप दोनों लिख सकते हो, मेरा क्लास टेस्ट में दोनों लिख सकते हो, आपकी मर्जी। यू कैन राइट गुड्स लॉस बाय फायर और यू कैन राइट परचेज अकाउंट ऑल्सो, बट एनएम मिठीबाई खास करके आपका कॉलेज जब अलॉट होगा तब याद रखना, एनएम मिठीबाई यूजेस परचेज एंड अदर कॉलेजेस दे यूज गुड्स लॉस बाय फायर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑफ 60,000 फॉर कैश। सोचो क्या हुआ, आपने फर्नीचर बेचा और पैसा आया, व्हाट आर द टू अकाउंट्स? Furniture account, cash account. Cash account and furniture. कैश अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट, बराबर है? इमेजिन किया सबने, फर्नीचर बेचा और पैसा आया, कैश एंड फर्नीचर, व्हाट आर द टाइप्स? Both are real. Both are real, both are real, absolutely right, both are real, both are real. अब कैश को क्या रूल अप्लाई करोगे? आ रहा है कि Debit जा what comes. Debit. आ रहा है, फर्नीचर बेचा पैसा आया, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड व्हाट अबाउट फर्नीचर? Credit what goes out. Credit what goes. जा रहा है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों में से एक ही फिट होगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फाइनली रीजन क्या लिखोगे? कैश कम्स इन एंड फर्नीचर गोज आउट, कैश कम्स इन एंड फर्नीचर गोज आउट। अब फाइनली क्या डेबिट करना है आपको? कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड फर्नीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड। इज दिस क्लियर? कैश इज डेबिटेड एंड फर्नीचर इज क्रेडिटेड। नेक्स्ट वन, लोन। अच्छा, इसमें मॉडर्न बोलो, मॉडर्न मॉडर्न, कैश और फर्नीचर, बेचा है फर्नीचर फॉर कैश, मॉडर्न, बोथ आर Both are assets. Asset. क्या बड़ा? Cash. कैश बड़ा ना, तो कैश बड़ा, एसेट बड़ा तो डेबिट, और फर्नीचर घटा, फर्नीचर घटा तो क्रेडिट। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई रुपीज, loan taken from SBI rupees 15,000. Now use your brains. Cash. SBI account and cash SBI account. One account is cash account, जो लोन लिया ना तो कैश आया ना बिजनेस में, और दूसरा क्या है? SBI क्या? SBI नाउ Creditors. क्रेडिटर, लायबिलिटी है, वेरी गुड। तो क्या अकाउंट यूज करना है? कैश अकाउंट, और खाली SBI मत लिखना, SBI लोन अकाउंट। क्या यूज करना है? SBI लोन अकाउंट। खाली SBI मतलब वो अपना डेटर या क्रेडिटर दोनों हो सकते हैं। ओके, तो लोन लिया है तो क्या यूज करने का? SBI लोन अकाउंट। ओके, तो कैश एंड SBI लोन अकाउंट। अब बोलो मुझे ट्रेडिशनल में व्हाट इज कैश, Real. व्हाट इज SBI लोन इन ट्रेडिशनल? Personal. Pers- वेरी गुड। व्हाई पर्सनल? Institute. Because it's an institute. इंस्टीट्यूट, लायबिलिटी, ऑल लायबिलिटीज आर पर्सनल, देना बाकी है। बस ये आ गया तो आपका 50% काम हो गया। अब इमेजिन क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, जा रहा है, Debit अपने what comes. डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन या क्रेडिट व्हाट गोज Goes आउट। out.
So debit what comes in पैसा आया आया आया. Debit what comes in Credit the giver. and loan. Credit giver. Credit the giver. पक्का? एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट ही है. तो डेबिट द रिसीवर करूं कि क्रेडिट द गिवर करूं? तो क्रेडिट द गिवर, लोन इज द गिवर. Okay. तो लोन दे रहा है अपने को, बैंक दे रहा है पैसा, क्या credit the giver? तो क्रेडिट द गिवर बराबर है, बैंक इज द गिवर. तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर. इज दैट क्लियर? अब रीजन क्या लिखोगे? कैश कम्स इन and SBI is the giver. SBI loan या SBI is the giver. SBI loan लिखो या SBI is the giver. Finally, what should be debited? Cash account. Cash account. What should be credited? SBI's loan. loan account. SBI's loan account. कभी भी आप लोन लेते हो तब लोन अकाउंट यूज करो. बोलो, ये बात समझ आई? मॉडर्न कंसेप्ट को नहीं छोड़ना है. मॉडर्न कंसेप्ट बताइए मुझे इसका. Cash is asset and Cash is Asset and liability. Liability. SBI loan is liability. कैश बढ़ा कि घटा बिजनेस में? increase. बढ़ा. पैसा आया, बढ़ा, तो एसेट बढ़ा तो Debit. डेबिट. और लोन Credit. क्यों? The liabilities Liability increase. is also increased. लाइबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? Body. बढ़ी. Body. जितना लोन लोगे उतनी लाइबिलिटी बढ़ेगी. तो एसेट बढ़ा तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट. दैट क्लियर? सगळ्यांना समजते की नाही? किसी को बाउंसर जा रहा है, रूल्स ट्रेडिशनल मॉडर्न नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आस्क. सॉर्टेड. बढ़ो आगे. पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन भाड़ा. Cash account and transportation. So one is cash account, definitely true. And what is the other account? Transportation. What is the transportation? Carriage outward, carriage Carriage inward में बोल सकते हैं. कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड लिख सकते हो, बट कैसा है? कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड दिया होगा सामने. कैरेज एक्सपेंस पे. कैरेज एक्सपेंस के लिए कैरेज यूज करना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन. थोड़ा सा फर्क है. कैरेज मतलब आउट ऑफ टाउन से आप गुड्स लेके आ रहे हो, दैट इज कैरेज. और विद इन द टाउन लोकल कर रहे हो तो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. तो नो नीड टू वरी. क्वेश्चन में दिया है कैरेज तो कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन दिया तो ट्रांसपोर्टेशन. यू कैन यूज द सेम अकाउंट. So one account is both are your expenses. Both are your expenses. Transportation is also an expense. Carriage is also an expense. The transportation expense लिख सकते हो या transportation account. One account is transportation account. I'll come to the doubt. And cash account. Okay, transportation and cash. Yes, Karthik. Sir, instead of writing transportation account, cannot we write conveyance account? देखो, conveyance और transportation में वापस थोड़ा सा फर्क है. Conveyance is for employees. Train fare, bus fare, taxi fare and all. And transportation is for goods, local transport. Okay. So transportation expense लिखो या transportation and cash. What are the types under traditional? Nominal and real. Nominal and real. All of you clear? Nominal and real, expense and asset. मुझे बताओ क्या रूल अप्लाई करोगे? नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. इसको क्या अप्लाई करो? Debit all Debit all expenses and losses. Debit all expenses and losses. What about cash? credit what goes out. Why credit what goes out? Cash आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है. जा रहा है. आपने पैसा चुकाया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा चुकाया. So credit what goes out. Is that clear? अब रीजन क्या लिखना है? ट्रांसपोर्टेशन इज एक्सपेंस and cash goes out. Finally, what will you debit? Transportation account debit and cash account is credit. Is that clear? Transportation expense debit and cash account is credit. Sorted. That's it. हो गया ये सब ट्रेडिशनल सिस्टम.
देख लो, ड्रॉ कर लो फॉर सेकंड सम। सेकंड भी ट्रेडिशनल से करेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ मॉडर्न से करेंगे। तो सेकंड वाला भी सिस्टम ले लो। So should we make a different table for Different it? table, different. If you have so lot of space left, then you can continue. Starting का 2-3 लाइन ही यूज Sir, हुआ है। same ऐसे. सेम टेबल। बहुत स्पेस बचा है ना, तो 2-3 लाइन छोड़ के आगे कंटिन्यू करो तो भी चलेगा। सेम टेबल ड्रॉ करना है। एनालिसिस टेबल अंडर ट्रेडिशनल सिस्टम, एनालिसिस टेबल अंडर ट्रेडिशनल सिस्टम। Columns are serial number, name of the account, type of the account, rule applicable, then you got your reason, account debited and account credited. रूल परफेक्ट होना चाहिए। रूल क्लियर है ट्रेडिशनल मॉडर्न का, तो फिर एनी एंट्री, ओके, एनी एंट्री यू कैन रिकॉर्ड। कोई भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस का आप रिकॉर्ड कर सकते हो। एनी ट्रांजैक्शन यू कैन एंटर, ओके। तो दिस इज ऑल्सो ट्रेडिशनल, लेकिन ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों करना है आपको। और मुझे बताओ, अच्छा लास्ट वाला अपना रह गया वो ट्रांसपोर्टेशन वाला, मॉडर्न में कैसे करना है? ट्रांसपोर्टेशन वाला मॉडर्न में बताओ मुझे। हाउ विल यू डू इट इन मॉडर्न? Asset and expense. Yes, cash is asset, transportation is expense. Absolutely right. And What happened to transportation? Expense increases. Expense increase. expense increase. increase हुआ तो डेबिट, Debit. जितना ट्रांसपोर्टेशन पे पे करोगे खर्चा बढ़ेगा। एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट। व्हाट अबाउट कैश? And cash Cash decreases. decreases. तो क्रेडिट। एसेट डिक्रीजेस तो क्रेडिट। सॉर्टेड। तो एक्सपेंस इंक्रीजेस तो डेबिट, एसेट डिक्रीजेस तो क्रेडिट। बढ़ जाओ, सेकंड वाले पे आ जाओ। फर्स्ट वन, अजय कमेंस बिजनेस विद 90,000। ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है उसका मतलब क्या है? क्या डाला उसने? Capital. Capital. व्हाट आर द टू अकाउंट्स? Cash account and capital. कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। वेरी सिंपल। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? ओनर ने पैसा डाला बिजनेस में, दैट्स कॉल्ड कैपिटल, राइट? So cash account and capital account. अभी one by one I'm going to ask. Veda Rane, tell me what is cash? Traditional type. Cash type traditional. Hello, not audible. Meet Panchamya, what is cash? Yeah, cash is real. Real. And what is capital? Capital also. Real. It's personal. Personal, human being. Why is your video off? Keep the Yeah. video on. Ashmi Modi, tell me the rule applicable to cash. Debit what comes in. Very good. Debit what comes in. लेकिन मैं तो ओनर हूं, मेरे पास से तो पैसा जा रहा है। और आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना। You have to think from the point of view of business. Business में पैसा आ रहा है. Debit what comes in. Absolutely right. Priyal Patel, what rule will apply to capital? Owner. Credit the giver. Very good. Personal account. Credit the giver. Credit the giver. What reason you will write Bansi Patel in cash? Debit what comes in. वो तो रूल हो गया।
Cash comes in. कैश कम्स इन, खाली इधर कैश कर देने का, कैश कम. ओके, एंड समीक्षा, व्हाट विल राइट इन कैपिटल एज रीजन? Owner is the giver. Very good, very good. Owner is the giver. Capital represents owner. इसके लिए पर्सनल है, वो ह्यूमन बीइंग है. So cash account is debited and capital account is credited. Cash account is debited, capital account is credited. Tisha, can you tell me the modern aspect of this? Yes, sir. What is cash in the modern aspect? Asset. Asset. What is capital in the modern classification? Liability. Capital, the modern classification. No, capital. Capital. It's capital only, right? So, Sir, what? I have a doubt. हाँ, बोलो. Sir, in drawing this sum, like we have to draw it on one single page or like. Two sides. Yes, but like the whole sum should be on 2 pages, right? But if sometimes it may not fit, na, so next 2 sides you can continue. 2 front sides you take. That is okay. 2 पेज 4 पेज कितने पे भी गया, that is fine. Doesn't matter. Okay. अब मुझे बताओ मॉडर्न सिस्टम में क्या करना है इसका? कैश और कैपिटल, कैश एसेट, कैपिटल कैपिटल. कैश बढ़ा कि घटा बिजनेस में? जब ओनर पैसा लाता है, कैश बढ़ा कि घटा? बढ़ा. कैश, पहले कैश बढ़ा तो डेबिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट. व्हाट अबाउट कैपिटल? Liability body. बढ़ा कि घटा? बड़ा बड़ा बढ़ा तो क्रेडिट. जितना कैपिटल लाएगा उतना कैपिटल बढ़ेगा. इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू गेटिंग दैट? तो कैश भी डेबिट, कैपिटल भी क्रेडिट. एसेट बढ़ा तो डेबिट और कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट. नेक्स्ट वन, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. रैना, व्हाट आर द 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व? Yes, sir. Purchase account and cash account. Absolutely right. Purchase account and cash account. Perfect. Srishti, tell me in traditional, what is purchase, what is cash? Cash is real and purchase is nominal. Very good. Absolutely right. Cash is real, purchase is nominal. Hetvi Ajmera, मने बताओ rule for purchase traditional में. It will be debit all the expenses and losses. Yes, perfect. Why you are saying that? You can say credit all incomes and gains also. Because it is a nominal, right? Nominal में तो दोनों होता है, debit all expense and Sorry, credit. हाँ, sorry, because we are purchasing it, so it is an expense. Yes, very good. Purchase is expense, biggest expense. What about Rivan? Cash को क्या rule apply करोगे? Credit what goes out. Very good. Why not debit what comes in? Sir, because cash is going out in when you are purchasing something, you pay in cash to pay. Yes. The cash goes out. Yes. Imagine, all of you imagine. Goods खरीदा, पैसा दिया. Imagine कर लोगे तो आधा काम हो जाएगा उधर ही आप. So purchase is expense and cash goes out. Cash goes out. Finally, what account should you debit? Purchase account is debited and cash account is credited. Is that clear? Sir, Bola. sir, is there any particular rule that the account that is going to be debited will be on the top and credit? Not a rule. You can write top में credit वाला और bottom में debit वाला, लेकिन फिर last में ध्यान रखना ये account debited में debit वाला ही लिखना और credited में credit वाला लिखना. उल्टा swap मत कर देना. आप ये कर सकते हो, परचेज को नीचे वाले लाइन में और कैश को ऊपर वाली लाइन में चलेगा, बट लास्ट में परचेज को डेबिट और कैश को क्रेडिट, वो परफेक्ट. ओके, हो सके तो अलाइनमेंट रखना, पहले ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट, बट ऊपर नीचे हो गया तो वालना नहीं, लास्ट में आंसर करेक्ट होना चाहिए. परचेज डेबिट एंड कैश क्रेडिट. ओके, थर्ड वन, हु विल आंसर दिस? अर्नव कुंदर. परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ₹30,000. अच्छा, एक मिनट. उससे पहले मेरे को मॉडर्न एस्पेक्ट बताओ इसका भौमिक. मॉडर्न एस्पेक्ट क्या होगा परचेज और कैश का? Purchase will be nominal. अरे मॉडर्न. Oh, sorry. Yes, sir. Purchase is? Hello?
आवाज न आ रहा है, नहीं आ रहा है। इशिका, मॉडर्न में क्या है? परचेज और कैश एसेट। सबको समझ आ रहा है? एक्सपेंस और एसेट, खरीदा गुड्स तो एक्सपेंस बढ़ा कि कम हुआ? इंक्रीज तो डेबिट। और कैश बढ़ा कि कम हुआ? डिक्रीज सो क्रेडिट। क्रेडिट। फिट हो रहा है रूल? मॉडर्न फिट हो रहा है रूल? तो परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। ओके, अगर मैं कहीं भूल भी जाऊं तो याद रखना, हर एक ट्रांजैक्शन में मॉडर्न अप्लाई करते रहना दिमाग में। ओके, और फिट नहीं हो रहा तो फटाक से मेरे को पूछ लेना, मैं करता तो रहूंगा, अभी बाय चांस स्किप हो गया तो खुद का दिमाग में रखो आइडिया मॉडर्न का। चलो थर्ड वन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहन ₹30,000। हंसिका। Yes, sir. Purchase account and cash account, because we're not buying it on credit. Nothing's mentioned. Rohan account. Why not cash? It's not mentioned. क्रेडिट का तो कुछ मेंशन नहीं किया है, तो why not Yeah, cash? but you said that we have to assume it's cash. If it's not written. Nothing is written, then you have to assume it's cash. Then why did I write Rohan? Why am I assuming it? But there is a name. There is a name, so that is the reason. See, all of you write this rule somewhere on the last page. Last page पे ये rule लिखो। क्या rule दे रहा हूं मैं? For a transaction to be on credit. For a transaction to be on क्रेडिट। ये थियोरेटिकल रूल है, प्रैक्टिकली तो आपको पता है, आपने कैश में खरीदा तो कैश, क्रेडिट में खरीदा तो क्रेडिट, सिंपल। ये थियोरी के लिए है। फॉर अ ट्रांजैक्शन टू बी ऑन क्रेडिट, टू कंडीशंस शुड बी सैटिस्फाइड। टू कंडीशंस शुड बी सैटिस्फाइड। व्हाट आर द टू कंडीशन? नंबर वन, party's name should be given. Party's name should be given. Party's name should be given. And number two, nothing should be mentioned about. Sir. हाँ सर, this we have to write. हाँ, ये लास्ट पेज पे सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, लास्ट पेज पे लिखना। नथिंग शुड बी मेंशन्ड अबाउट कैश और चेक। कैश और चेक के बारे में कुछ नहीं, मतलब एग्जाम्पल फॉर कैश, फॉर चेक, NEFT, RTGS, ये कुछ नहीं होना चाहिए। ये नथिंग शुड बी about cash or check, for cash, for check, ये नहीं होना चाहिए। and party's name should be given, ये दोनों चाहिए, दोनों and दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब आपने गुड्स खरीदा है ऑन क्रेडिट, पैसा लेटर डेट पे दोगे, या गुड्स बेचा है ऑन क्रेडिट, पैसा लेटर डेट पे मिलेगा। सेम गोज फॉर एसेट ऑल्सो। एसेट खरीदा ऑन क्रेडिट, पैसा लेटर डेट पे, एसेट बेचा ऑन क्रेडिट, पैसा लेटर डेट। तो परचेज और सेल क्रेडिट पे हो रहा है कि कैश पे हो रहा है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए दो कंडीशन है। व्हाट आर द टू कंडीशंस? पार्टीज नेम शुड बी गिवन, नंबर वन, एंड नथिंग शुड बी मेंशन्ड अबाउट कैश और चेक। तो लेट्स वेरीफाई। क्या दिया है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहन 30,000। पार्टी का नाम दिया है, यस, कंडीशन वन फुलफिल्ड। इज देयर एनीथिंग मेंशन्ड अबाउट कैश और चेक? नो, द सेकंड कंडीशन आल्सो फुलफिल्ड, so that means it's on credit. Let's put this condition on the above वाला, second वाला देखो, ऊपर वाला। Purchase goods for cash, पार्टी का नाम दिया है, एक कंडीशन भी वायलेट हो गया तो कैश, दूसरा देखने का ही नहीं। पार्टी का नाम ही नहीं दिया मतलब कैश। इज दिस क्लियर? दोनों कंडीशन हुआ तो क्रेडिट, दोनों में से एक भी नहीं हुआ ना, कभी कभी ऐसा देगा, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहन फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहन फॉर कैश। अभी रोहन दिया है लेकिन फॉर कैश आ गया, फॉर कैश मतलब इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन, सिंपल, कॉमन सेंस। इज दिस क्लियर? So party's name should be specified and nothing should be given about cash. Only then it is a credit transaction. So यहाँ पर is it on cash or on credit now?
Credit. क्रेडिट. ऑल ऑफ यू गॉट दैट. अब क्या होंगे? परचेज एंड कैश हो सकते हैं क्या? आर वी पेइंग कैश ताबड़तोड़? इट्स पेंडिंग. So purchase and Rohan. Okay. Khushi Doshi, tell me the types. So Ready? purchase will be nominal and Rohan will be personal. Very good. Purchase will be nominal and Rohan will be personal. Purav Shah, what rule you will apply to purchase? Purchase will be debit all expenses and losses Why? because we are purchasing, so it is an expense. Biggest expense, goods purchase are biggest expense. Absolutely right. What about Rohan Atharva? Rohan को क्या rule apply करोगे? Credit the giver Very good. Why not debit the receiver? because Rohan is giving us Rohan is giving or us the goods. on Absolutely right. He is the giver. Adit Shah, reason बताओ. Purchase क्या क्या reason लिखोगे? purchase is expense. Very good. What about Rohan? Rohan is the giver. Very good. Rohan is the giver. Finally, answer तो आ गया अभी आपको. Purchase account is debited and Rohan account is credited. Purchase account is debited and Rohan account is credited. मॉडर्न कंसेप्ट हर्षिल भानुशाली. मैंने मॉडर्न कंसेप्ट बताओ. मैंने मॉडर्न कंसेप्ट बताओ. हाँ सर. Purchase account is the expense, so expense is increasing, so it is debited. Perfect. And Rohan account is a liability, which means it is credited, so liability increases, so it is credited. क्रेडिट होने से बड़ी क्यों? बड़ी इसके लिए क्रेडिट दिया. बड़ी हुई इसके लिए क्रेडिट हुआ ना. लायबिलिटी क्यों बड़ी? समझा? रोहन क्यों लायबिलिटी बड़ी आपकी? हाँ सर, क्योंकि वो क्रेडिटर है. क्रेडिटर है. उधार बढ़ा. जितना उधार खरीदोगे बढ़ा. उतना उधार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा. बराबर है. चुकाओगे तो घटेगा, खरीदोगे तो बढ़ेगा. तो लायबिलिटी भी बढ़ी, क्रेडिट. एब्सोल्युटली राइट. परफेक्ट एकदम. बेदार आने का माइक चालू हुआ कि नहीं? फोर्थ वन, सोल्ड गुड्स टू हिना. पहले तो मुझे बताओ देख के कि ये कैसे सेल हो रहा है, कैश और क्रेडिट? आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज. क्रेडिट. On credit. Credit ऐसा पता चला ऑन क्रेडिट. पार्टी का नाम is क्या given है? and nothing is mentioned. Nothing is mentioned about cash or check, so it's on credit. So Daksh Mehta, क्या बता सकते हो? What are the two accounts? Yes, sir. The two accounts will be आराम से सोचो. sir, Hina account and Hina account and goods account. Goods you are selling, so which account you have to use? Sales account, sir. Hina and sales. Why not cash and sales? Because we are not getting cash. We are Transaction on credit. credit. Transaction is on credit. Tell me Hitarth types, Hina and sales. Sir, Hina is personal account and the sales is nominal account. Yes, perfect. एकदम right. Hina is personal, sales is nominal. सीधी टक्कर rule. हिना जी को क्या रूल अप्लाई करोगे? Debit what comes in. Hina is coming in. Hey, debit the receiver. Debit the receiver. हिना गुड्स लेके घर पे आई ना. डेबिट व्हाट कम्स इन. स्वागत करो उसका, पूजा की थाली लेके. बोला था मैंने, ऐसा लोचा मारते हैं स्टूडेंट. पर्सनल अकाउंट, इट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो हिना जी को क्या अप्लाई करना है? डेबिट द रिसीवर. व्हाई डेबिट द रिसीवर? व्हाई डेबिट द रिसीवर सिद्धि? Because it's personal. Okay, it's personal. And imagine na, you are selling the goods, so she is receiving the goods. That also you can imagine.
निकल गया, वापस आ गया। हीना इज द रिसीवर एंड व्हाट, सेल्स का सेल्स इज इनकम, करेक्ट? Hina is the receiver and sales is income. Finally, Hina is debited and sales account is credited. Hina account debit, sales account credit. Who would like to tell me the modern concept for this? Karthik भैया बताइए मुझे. Sir, Hina is an asset because she's our debtor. Very good. Damn right. And since assets increase, so it is debited. Why asset increased? How come asset increased? Hina बड़ी हो गई 2 साल. Because मतलब अभी बाद में पैसा मिलने वाला है ना. हाँ, मिलने वाला है, बराबर है, इसलिए एसेट बढ़ गया अपना. और sales is income, so Absolutely. so when income increases then it's credit. परफेक्ट. सबको बैठ रहा है ऐसा लॉजिक? डेटर बढ़ा, जितना सेल करोगे उतना डेटर बढ़ेगा, डेटर बढ़ा एसेट बढ़ा तो डेबिट, और इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. तुमको समझ रहा है वेदा राणे? मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, खाली मुंडी हिलाओ, ठीक है? यस सर, यस सर. आ भी गयो, जो आवाज आ भी गयो. वेरी गुड. अबे बोलो आंसर. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, वेदा राणे. Sales account and cash account. वेरी गुड, परफेक्ट. कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, परफेक्ट बोला. आई एम ऑन पर्पस राइटिंग इट थोड़ा ऊपर नहीं, आप सेल्स ऊपर और कैश नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बराबर से रूल फॉलो करना है. कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. वेदा राणे, टेल मी द टाइप्स. Cash is real and sales is nominal. Very good, very good, perfect. Priyal Patel, tell me the rule applicable to cash. Debit what comes in. Why debit the receiver? नहीं कर सकते. Why can't we do debit the receiver? Cash is a thing, it is coming. Cash is a thing, real account it is coming in. सीधी टक्कर है तो બધું ચાલે ને, debit the receiver पर નાખી દેવાનું. What about sales? Rishi Shah, what about sales? A credit all incomes and expense. Okay, तू भी भाव में लौकिक का भाई. Credit all incomes and expense. क्या रूल है भाई? Credit all incomes and gains. Gains. How come expense? Expense debit, incomes credit. Clear? Locking and you both. Rule. Okay, chalo. Finally, cash comes in. Okay, and sales is income. So cash is debited and sales account is credited. Cash account is debited, sales account is credited. यशवी गंगर, मुझे मॉडर्न कंसेप्ट बताइए. यशवी गंगर, मॉडर्न कंसेप्ट बताइए. Cash is asset. Yes. And sales is income. Very good. और डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ? Yeah, we received cash, so it increased and it will be increased, so debit. Very good. And sales are going, so no. Sales income. are going out in nominal. No, unless sales increases, so What it are is correct. income, right? बड़ा. इनकम बढ़ा तो मॉडर्न में खाली बढ़ा और घटा वही देखने का है. बढ़ा घटा, दैट्स इट. इनकम बढ़ा के घटा बढ़ा तो क्रेडिट. गॉट इट? हर्ष मांगे जी, 6th one. पेड कैश टू रोहन ऑन अकाउंट. ये ऑन अकाउंट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, याद है लास्ट लेक्चर में? ऑन अकाउंट मतलब क्या है? Part of money which we have to pay. पार्ट ऑफ मनी विच वी हैव पेड. ओके, बाकी पार्ट का कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाद में दे देंगे. ओके, जो पार्ट दे रहे हो उसको ऑन अकाउंट बोला जाता है. ओके, कीप द वीडियोस ऑन. मनन, सिद्धि, शोभ, कसक इज ट्रैवलिंग, दिया, शुभन. ओके, टेल मी प्रिशाशा. प्रिशाशा. Sir, cash. अच्छा, एक मिनट, मैंने किसको पूछा था इससे पहले? सॉरी, आई जस्ट Harsh. या हर्ष. सॉरी प्रिशा, बाद में आता हूं मैं तुम पे. हर्ष बोलो मुझे, पेड कैश टू रोहन ऑन अकाउंट. Cash account, Rohan account. वेरी गुड,
Rohan account and cash account. Absolutely right. Prisha, tell me the type. Personal account, personal and real. Personal and real. Absolutely right. Who's next यहाँ पे? बंसी पटेल जी बताइए. Rule applicable to रोहन. आराम से सोच के बताइए. Credit the giver. पढ़ो जरा क्वेश्चन पढ़ो. Paid cash to Rohan on account. Credit the receivers. पक्का? हाँ. इमेजिनेशन. अगेन आई टोल्ड यू, जैसा आया पेड कैश टू रोहन वाला, आप रोहन को पैसा दे रहे हो कि रोहन से पैसा ले रहे हो? बोलो. अरे ભાગી ગઈ. સમીક્ષા, શું લાગે છે? રોહન ને પૈસા આપીએ છે કે રોહન से पैसा આવે છે? Rohan is the receiver. Rohan is So the receiver. We are giving him the money, right? So debit the receiver, debit the receiver. Imagination is very important. Imagine नहीं करोगे तो लटक जाओगे. Imagine. Idhant, what about cash? Cash credit what goes out. Very good. Credit what goes out. Finally, क्या डेबिट करना है? I think Rohan is the receiver. Reason में लिख दो, Rohan is the receiver and cash goes out. So Rohan account is debited and cash account is credited. Bhaumik, can you tell me the modern concept of this? Hello, Bhaumik. क्या गयो? आवाज ज नत आवતું यार. Mishti, can you tell me the modern concept of this Mishti? Mishti Mehta, are you there? Sir, now my voice is coming. हाँ बोलो बोलो भौमिक बोलो. Sir, cash account and in account. અરે ક્યાં પહોંચી ગયો? આનું મોડર્ન પૂછું છું તને. રોહન અને cash. Rohan will be asset. Why asset? Rohan will be liability. हाँ, કેમ liability હવે? Asset નહીં તો liability. No, sir, because he will receive the money. He will receive the money or we will receive the money? He will receive the money. हाँ, because he we is are receiving. paying. Why are we paying him? रास्ते में देखा, शक्ल अच्छी लगी तो पैसा दे दिया? No, sir, because his account, we have put in his account. We have to pay. Okay, why are we paying Rohan? What is the reason? पहले क्या हुआ है उसके साथ? Credit the giver. हाँ, तभी परचेज किया था ना. तो who is Rohan for us? Guys, all of you are able to recognize Rohan. This is not that Rohan from Kabhi Khushi Kabhi Gham who turned into Hrithik Roshan 10 years later. Lost 100 kg weight and also a finger of thumb. What's a thumb? सर ऐड हुआ था, रोहन. लॉस नहीं हुआ था. हाँ, ऐड हुआ था एक उंगली. हाँ, एक उंगली ऐड हो गया और 100 किलो कम हो गया. This is not that Rohan. Who is this Rohan? Come on. The one from whom we took the loan. From whom we have purchased हाँ, the from whom we have purchased the goods. This Rohan is our creditor. All of you are recognizing him. ये रोहन कभी खुशी कभी गम वाला नहीं है, हमारा क्रेडिटर है. अब क्रेडिटर को हमने पैसा दिया तो क्रेडिटर बढ़ेगा घटेगा ना. लायबिलिटी कम हुई, लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट, और पैसा गया, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट. इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू. रोहन को सेटल किया तो लायबिलिटी घटी तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट. ओके, बढ़ू आगे. नेक्स्ट वन, 7th वन.
Received cash from Hina 7,000 on account. Ashmi, tell me what are the two accounts? Ashmi Modi, Yes, sir. two accounts. Cash account and Hina account. Very good. Cash account and Hina account. Okay, okay. Diya has got disconnected. I got it. Tell me the type, Meet. Type. Yes, sir. Which one? Hina Hina account. and cash and Hina. Yeah, cash account is real and Hina account is personal. Absolutely right. Cash is real. Hina is personal. Who was your Rivan? Tell me the rule applicable to cash. For cash is real, so debit what comes in. Cash is real. So debit what comes in. Why not credit what goes out? Or because we are receiving the cash. We are receiving the cash. Imagine, Hina ने अपने को पैसा दिया. Hina ने अपने को पैसा दिया. तो cash is coming in. What about Hina? Heath? What about Hina? Heath? Yes, credit the giver. Because Credit the giver. Credit the giver. She is giving us the money. Credit the giver. बस ये आ गया तो इसी के बेसिस पे रीजन लिखने का. Cash comes in. Hina is the giver. Finally, cash account is debited and Hina account is credited. Purav, can you explain me the modern concept of this? Yeah, so in modern it will be cash account will be okay, cash will be counted as Yes. asset. Asset. Yeah, and Hina will be counted as an she'll be Hina कौन है? कौन है Hina? ढूंढो, पता लगाओ. she's the creditor. Creditor. Sure. She gave us the money, right? Why would she give us the money? ऐसे ही अपनी शक्ल पसंद आ गई. Oh yeah, sorry, she's the debit. She's the She has debtor. debtor. She's our debtor. Are all of you recognizing she's our debtor? Why she's our debtor? How she's our debtor? We had sold goods to her on top. Can you see that on credit? कितने का goods बेचा था हिना को? I think we sold 15,000. But वो 15 तो नहीं दे रही है, 7 ही दे रही है. चलेगा क्या ऐसा? No, she's paying in installment. On account. अभी आधा बाद में आधा. Okay. अभी 7,000. So अभी 7,000 का एंट्री करना है. तो 7,000 के लिए why is she giving us the money? All of you got that? She was our debtor. Okay. ऐसे ही रास्ते में चलते चलते कोई अपने को पैसा देगा नहीं, ना हम किसी को पैसा देंगे. तो हम अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो क्यों देते हैं? That guy must have been our creditor. And हम अगर किसी से पैसा लेते तो क्यों लेते हैं? That guy or girl should be our debtor. Is this clear? Yes, proceed. Yeah, tell me. आगे क्या करना है अभी rule modern? Yeah, so cash account में it will be because it is increasing, it is debit, and Hina is because it is she's the debtor, therefore she'll be in the credit. Why? Because we are receiving money. Okay, so debtor was asset, and this asset increased or decreased? Decreased. How it decreased? You got it? She gave us the money. Yeah. So gave us the money. Now she is no more of our debtor. So debtor decreased. So credit. Cash बढ़ा तो debit. घटा तो credit. ये समझ आया? Debtor क्यों घट गया समझा? Why debtor decreased? Because she gave us the money. That's why she decreased. So that's why it is credited. Debtor को goods बेचोगे तभी बढ़ेगा. तभी पैसा लेना बाकी है. ये पैसा आ जाएगा तो debtor is no more now. So debtor decreased. So credit. बढ़ू आगे 8th one. Any doubts? Mahisha. Tell me the next one. Paid for office rent. What are the two accounts? Just a second, sir. Yes.
ऑफिस रेंट पे किया. व्हाट इज ऑफिस रेंट फॉर अस? Rent account. Nominal. Rent, nominal, yeah, rent account, absolutely right. Rent लिखो या office rent लिखो, एक ही बात है. Office rent account. And what is the other account? Cash account. Cash account. You paid an expense, office rent and cash. Got it? Tisha, tell me the types. Traditional. Yes, sir. Nominal and real. Very good. Nominal and real, absolutely right. Samiksha, tell me the rule applicable to office rent. Debit all the expenses and losses. Very good. Debit all expenses and losses. Absolutely right. What about cash? Siddhi Thakkar, cash. सिद्धि ठक्कर, कैश को क्या रूल अप्लाई करोगे इसमें? सिद्धि ठक्कर. Sir, am I audible? हाँ, I thought I was not. No, actually, हाँ, I was not. बोलो कैश कैश के लिए क्या रूल अप्लाई करोगे? Credit what goes out. Credit what goes out. Absolutely right. Credit what goes out. Finally, rent is expense. Office expense. जब आप ऑफिस का प्रीमाइस खुद खरीदते नहीं हो ना, तो वो आपका एसेट नहीं है, तो आप रेंट पे करोगे. तो रेंट इज योर एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट. तो फाइनली ऑफिस रेंट लिखो या रेंट लिखो चलेगा. रेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट. ओके. अच्छा, ये नाम है ना जो अकाउंट के, ये कोई कंपल्शन नहीं है यही नाम होना चाहिए ऐसा. कोई बिजनेस ऑफिस रेंट अकाउंट लिखता है, कोई रेंट अकाउंट लिखता है. ओके. कोई प्रीमाइस रेंट अकाउंट लिखता है. ओके. तो कोई अलग नाम से आप रेंट अकाउंट बना सकते हो. जनरली वी यूज ऑफिस रेंट और रेंट. दैट इज द स्टैंडर्ड. तनिष्ठा जी बताइए मुझे मॉडर्न कंसेप्ट. Office rent is expense यस. and cash is also expense. कैश इज आल्सो एक्सपेंस. हार्ट अटैक दे दिया तुमने मेरे को. So cash ऑफिस रेंट तो एक्सपेंस है, कैश क्या है? cash goes out. अरे लेकिन कैश है क्या पापा? एसेट, Asset, लायबिलिटी, इनकम. Asset. Asset. So many times we have done cash asset. What man? Cash is asset, office expense, rent is expense. अब रूल अप्लाई करो एक्सपेंस और एसेट का. मॉडर्न. Expense is increases are debited and increases means debit and decreases means credit, and in assets increases means debit and decreases means credit. इधर क्या हो रहा है? Either office rent, the office rent it is debited. Why? बढ़ा कि घटा? बढ़ा. बढ़ा. जितना रेंट पे करोगे उतना खर्चा बढ़ेगा. बढ़ा तो डेबिट. एंड व्हाट अबाउट कैश? Cash is credit means घटा, decreases. क्रेडिट मीन्स घटा नहीं, घटा इसके लिए क्रेडिट. कैश घटा इसके लिए क्रेडिट. एसेट घटा इसके लिए क्रेडिट. कम हो गया ना, इसके लिए क्रेडिट. Is that clear? The last one I'm discussing and then we stop at this point. Harshil Bhanushali, tell me the last one. Received commission. Sir, commission account and cash account. Very good. What is this commission for us? Nominal and income. Income, absolutely right. So what are the types? वो भी बोल दो. Sir, cash is real, commission is nominal. Cash is real, commission is nominal. Perfect. Okay, now just a minute. Ishika, tell me the rule applicable to cash. Yes, sir. Credit what, debit what comes in. पक्का? Credit what goes out बोलने वाली थी. नहीं. हाँ. Debit what comes in. पक्का क्यों? कमीशन मिल रहा है Because कि? cash comes in. Cash is coming in. Yes. Debit what comes in. Cash आ रहा है. Imagine आपने किसी का कुछ काम करके दिया, किसी के बिहाफ पे गुड सेल करके दिया, तो आपको कमीशन मिल रहा है. तो कमीशन इज योर इनकम. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये साइड इनकम है आपकी बिजनेस की. एंड व्हाट अबाउट कमीशन? वेदिका, इज योर माइक वर्किंग नाउ?
कहीं करो बेटा माइक नो. Ashmi Modi, what you will do for commission? So, commission, credit all incomes and gains. Very good. Credit all incomes and gains. Absolutely right. Okay, finally reason क्या लिखना है? Cash is coming in, cash comes in, and commission is income. Credit increase. Increases, commission increases, so credit. So बराबर it is है? also credited. That is also credit. Absolutely right. अब on that note we stop over here. Okay. नेक्स्ट आइटम्स आगे के कल क्लास में करवाता हूं मैं. ओके, यहाँ से विल स्टार्ट टुमारो इन क्लास. टुमारो नहीं, सॉरी, डे आफ्टर टुमारो. बताओ यहाँ तक कोई डाउट्स, क्वेरीज, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग. लौकिक को समझा अभी? लौकिक सॉर्टेड? वेरी गुड. एनी पर्टिकुलर डाउट यू वांट टू आस्क? लास्ट लेक्चर, दिस लेक्चर, सम ऑफ यू हैड मिस्ड द लास्ट लेक्चर, हॉलीडे मना रहे थे मस्त में. तो प्लीज गो थ्रू द वीडियो, जो भी पेंडिंग मिसिंग है कंप्लीट कर लो उसको. निशा को समझ रहा है? निनाद सिद्ध को समझ रहा है? Yes, sir. ऑल क्लियर. अच्छा, अब क्या बोलने वाला था? हाँ, ये जो 10:30 to 11:30 वाला लखानी वाला, हाउ मेनी पीपल आर देयर ओवर हियर? सीईटी वाला पब्लिक? 1 2 3